ملتان میں سکندر بوسن گروپ نے تحریک انصاف کے منحرف ایم این اے احمد حسین ڈیہڑ کو مفاد پرست قرار دے دیا۔ حافظ اللہ دتا کاشف بوسن کا کہنا ہے احمد حسین ڈیہڑ جس جماعت میں جاتے ہیں پھر اسی جماعت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے۔ جی بالکل، تحریک انصاف کے باغی رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہڑ سندھ ہاؤس میں ہونے کے بعد جو مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ احمد حسین ڈیہڑ کے حلقے میں ان کے مد مقابل اور تحریک انصاف کی سے ٹکٹ کے امیدوار حافظ اللہ دتا کاشف بوسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سکندر بوسن گروپ کے بھی ایک اہم رکن ہیں، اور ساتھ ساتھ احمد حسین ڈیہڑ کے مقابلے میں الیکشن کے بھی خواہش مند تھے اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار بھی ہیں۔ حافظ صاحب، احمد حسین ڈیہڑ کا کہنا ہے کہ ان کی 2 سال سے اپوزیشن کاٹ رہے ہیں وہ حکومت میں ہونے کے باوجود، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، بالآخر وہ وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ اس میں بالکل مختصر سی بات یہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا سارا جو اس کا کیریئر ہے وہ یہی ہے کہ جس جماعت کے ساتھ یہ کھڑا ہو کر وہاں سے منتخب ہوتا ہے تو پھر اسی جماعت کے خلاف سازشیں کر کے دوسرے گروپ کے ساتھ ملنا اس کا وتیرہ ہے، اس کا مزاج یہی ہے۔ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھا تو اس وقت حاجی سکندر ریاض صاحب سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ پینل میں لے لیں، اور اس وقت سٹنگ ایم پی ہونے کے باوجود یہ ان کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے فنڈز نہیں ملے، جو 3.5 سال تک یہ کہاں رہا ہے، غریب سڑتے رہے، گلتے رہے، مرتے رہے، ان کے کسی دکھ درد میں، اس کی مصیبت میں، ان کی پریشانیوں میں، اس کے مصائب و آلام سننے کے لیے یہ موجود تھا؟ کہیں نہیں ہے۔ پورے 3.5 سال تک یہ غائب رہا ہے۔ اب منظر عام پر آیا اس وقت جب یہ بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا ہے، تو اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ پھر ایک چالاکی کے ذریعے، پھر آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر پھر ایک نئے ٹکٹ کی تلاش میں ہے۔ ادروائز کل تک تو ارطغرل غازی کہتا تھا عمران خان کو نجات دہندہ کہتا تھا، ارطغرل غازی کا وہ جو اس کا کردار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ قوم کا نجات دہندہ تھا، اب وہ قوم کی کشتی ڈبونے والا بن گیا۔ اس کا کردار ایسا ہے۔ اگر احمد حسین ڈیہڑ جس طرح پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے گی، اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو دوبارہ حلقے میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے، تو بوسن برادری الیکشن لڑے گی ان کے مقابلے؟ بھرپور طریقے سے لڑے گی، اور آپ دیکھیں گے اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، یہ ڈی سیٹ ہو جائے اور یہ ڈسکوالیفیکیشن ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلقے میں اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اچھا بوسن صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا، اب ڈیہڑ جس طرح مسلم لیگ نون کے اگر ٹکٹ لیتے ہیں تو بوسن برادری کا یعنی حافظ اللہ دتا کاشف صاحب کا کیا مستقبل ہوگا نون لیگ میں؟ بریگیڈیئر کیسر کا کیا مستقبل ہوگا؟ سلیمان قریشی کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں کہتا ہوں جی، یہ پہلے تو ان کو ابھی یہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ لوگ جب ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ حلقے کا سروے کرتے ہیں، حلقے کے عوام کی رائے کو دیکھتے ہیں، وہاں کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ اگر ٹکٹ دینے والوں نے عوام کی رائے کو مد نظر رکھا تو اس کا ٹکٹ نہیں ہے، اور اگر عوامی رائے کو نظر انداز کر کے ٹکٹ دیا تو اس کا حشر اتنا برا ہوگا۔ یہ سکندر ریاض صاحب، کیسر مہر صاحب، باقی دوست جو ہے نا، یہ جو سٹریٹجی طے کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا مقدر شکست فاش ہوگی۔ احمد حسین ڈیہڑ کو یہ چیلنج بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر اس حلقے میں احمد حسین ڈیہڑ کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سیاسی درجہ حرارت عروج پر رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کہتے ہیں حکومت کھوکھلی ہو گئی ہے، واضح طور پر عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، او آئی سی کے دوران کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد بتائیے۔ جی بالکل، ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے، اور بات کرتے ہیں تو طریق عدم اعتماد کے حوالے سے جو کافی تعداد میں جو منحرف ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، اور مسلم لیگ نون اور یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، تو آگے کی صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ طریق عدم اعتماد کے حوالے سے واضح طور پر جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کو برتری حاصل ہو رہی ہے؟ تو ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی پنجاب علی حیدر گیلانی صاحب۔ ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا، حکومت ڈر گئی ہے میں سمجھتا ہوں، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں تو بہتر ہے۔ جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ذلت عمران خان صاحب کے نصیب میں ہی تھی اور پی ٹی آئی کے نصیب میں ہی تھی کہ کوئی وزیر اعظم بھی اتنا ڈسگریسفلی اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ
گندے طریقے سے اور نہیں گیا واپس جس طرح عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ عزت سے استعفیٰ دیں, کیونکہ کب تک یہ کرسی کے ساتھ چمڑے رہیں گے اور یہ رونا دھونا ڈالا ہوا ہے پچھلے. عمران تو ہمارے پاس بہت ہیں جی, عمران تو آپ کے سامنے ہیں. اس طرح تو نمبر گیم میں اگر ہم آئیں تو آج اجلاس بلا لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے نمبر شارٹ ہیں عمران خان کے پاس. 172 سے تو بہت زیادہ ہیں, یہ 200 سے اوپر کے نمبرز ہیں, اور بہت بری طرح عمران خان نے ڈیلیور کیا. اصل میں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں آتا. عمران خان کو سیاسی ذہن بھی نہیں ہے ان کا. وہ اپنے لوگوں کو نہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, نہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. جس بندے میں غرور ہو, جس میں تکبر ہو, جو گھر بلا کے فاتح دیتا ہو اور کسی کی نہ خوشی میں نہ ہو نہ غمی میں ہو, تو یہ وزیر اعظم سے ہٹے گا تو اس کو تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا. آپ کے ایک سیاسی حریف ہیں احمد حسین ڈیہڑ صاحب, آپ نے دوبارہ اس کو اپنے گلے سے بھی لگا لیا ہے قسم کے اپوزیشن نے. اچھی بات ہے اگر انہوں نے اپوزیشن اور عمران خان کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. باقی میں ان کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں, ان کی اپنی مرضی ہے, جس مرضی جماعت سے لڑیں الیکشن. کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اویسی اجلاس کیسے ہوتا ہے, یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اور چیئرمین صاحب نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے 2 دن جب یہ کانفرنس ہوگی, ہم اس دن اسلام آباد کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں چاہیں گے, کیونکہ انٹرنیشنلی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی ایک میسج جائے, برا میسج جائے, اور ہم ایک نیشنل انٹرسٹ کے کاز کے لیے ہم پالیٹکس کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے. لیکن گورنمنٹ لا رہی ہے, عمران خان صاحب لا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں 27 کو جلسہ کروں گا, 10 لاکھ بندہ اکٹھا کروں گا. 10 لاکھ کی تو انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی. 10 لاکھ بندہ, 10 بندے سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا ہے 70 بندے سے. یہ زور لگا لیں, دیکھ لیتے ہیں کتنے بندے ہوں گے. ہمارا لانگ مارچ آپ نے دیکھا تھا, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کتنے لاکھوں لوگ بلاول چیئرمین صاحب کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے یہ اب گھر جا چکی ہے. بس یہ اپنے اقتدار کو یہ کرسی کے ساتھ چمڑنے کی جو ان کی عادت ہے وہ اگر چلی جائے گی تو یہ گھر چلے جائیں گے. بہت شکریہ علی حیدر گیلانی صاحب, رکن صوبائی اسمبلی پنجاب, تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے, اور ان کے مطابق عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سے جو ٹکٹ ہولڈر سے جو خراب ہو چکی ہے. امجد ملک, شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. منشن آباد سے ایم این اے میاں عبدالغفار کا ویڈیو بیان جاری. میاں عبدالغفار کا کہنا ہے عمران خان کا کرپشن فری نیا پاکستان کے لیے ساتھ دیا, اپنے حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوا. سوشل میڈیا پر لگنے والے تمام الزامات بے بنیاد ہیں. مزید میاں عبدالغفار کا کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں. چاٹ ضلع بہاول نگر سے حالیہ الیکشن میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نے الیکشن میں حصہ لیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے اور میرے حلقہ کے عوام کی ان کی سپورٹ سے اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا, اور اس الیکشن کے بعد میں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی, خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا. جو نیا پاکستان کرپشن مقابلہ پروگرام تو اس کے تحت شامل ہوا. لیکن مجھے مایوسی اس بات پہ ہوئی کہ میں کچھ اپنے حلقے کے مسائل کرپشن کے حوالے سے, اپنے جو اداروں میں کرپشن تھی ان کے پاس میں ریٹرن ثبوت کے طور پہ لے کر گیا کہ جو خان صاحب یہ جو کچھ آپ انکوائری کروائیں اور یہ چیزیں آپ خود چیک کریں. لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس پہ ماسوائے نعروں کی ہاتھ کے آگے اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر میرے حلقے کے 2 پروجیکٹ جو سوئی گیس اور جو لنک تھا, جو سی پیک موٹر وے لنک تھا, اس کے ساتھ جو ہے جو میرے ایک مطالبہ تھا, میں نے انہیں 12 دفعہ کہا کہ آپ جو ہے نا کہ میرے حلقے کو, میرے ضلع کو اس کی ضرورت ہے, وہ آپ ہمیں مہربانی کرے وہ دے. اس میں بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور حالیہ جو آج میں یہ ویڈیو ایک ریکارڈ پیغام دے رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک سوچا چھوڑا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے ناراضگی کا یا اپنی پارٹی کا حق, یہ میرا ایک بنیادی حق ہے کہ میں سوال پوچھوں تو آگے یہ الزام آ جاتا ہے کہ شاید کہ جو ہے اور 12-14 کروڑ روپے کا. ملکی صورتحال اور سیاسی گرما گرمی. پی ٹی آئی کا اسلام آباد جلسے میں شرکت سے متعلق اجلاس میں پی ٹی آئی بہاولپور ڈویژن کے رہنما فرزند گوہیر کی شرکت. ڈسٹرکٹ صدر پی ٹی آئی ملک اصغر عدیل کی بھی شرکت. ہزاروں کارکنان بہاولپور سے اسلام آباد پہنچیں گے, ایسا کہنا تھا فرزند گوہیر کا. عمران خان ملک بچانے کی آخری امید ہے, ان کا ساتھ دینا ہوگا, ایسا کہنا تھا اصغر جویا کا.
बहावलपुर में पैनाडोल गोली नायाब हो गई। शहरियों और मरीजों और उनके लवाहिकीन को परेशानी का सामना। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। अब बहावलपुर में पैनाडोल की गोली भी नायाब हुई है, जिसके बाद शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। सर दर्द हो, थोड़ा सा बुखार हो, नज़ला हो तो पैनाडोल लेकर बहुत सारे लोग खुद ही डॉक्टर तो बन जाते थे और सहूलत से फ़ायदा भी उठाते थे। लेकिन पूरी मार्केट में जहाँ पे इस वक्त मौजूद है विक्टोरिया अस्पताल के सामने जितनी भी सरकारी जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स की मार्केट है, यहाँ पर पैनाडोल नायाब हुई है तकरीबन 2 माह से। क्या पूछते हैं सर क्या वजह है कि पैनाडोल इतनी शॉर्ट हुई है? ये तो हुकूमत को पता होगा कि क्यों शॉर्ट है। दूसरी इसकी वजह यह है कि लोगों ने ब्लैक करनी शुरू कर दिया। पैनाडोल की जो कंपनी है बेसिक उसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने पैनाडोल एक्सटेंड के नाम से एक नई लॉन्च किया, इसलिए इसकी सेल रोक दिया उन्होंने। रोक दी है जिसके बायस लोग जो है वो आदी हुए थे पैनाडोल का। बीबी आप बताइएगा यहाँ पे पैनाडोल लेने आई हैं, क्या हुआ? हाँ, पैनाडोल नहीं मिल रही भावलपुर किसी जगह से भी नहीं मिल रही। 2 महीने से पैनाडोल नहीं मिल रही। तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी पूछते नहीं जो परेशान तो होते हैं ना। परेशान तो होते हैं और लोगों से भी जानते हैं। सर जरा आप हमें बताइएगा पैनाडोल आपको मिली कहीं से भी मिली? जी कहीं से नहीं मिल रही। हम मरीज दाखिल करके बैठे हुए हैं, खुद परेशान है कि भाई हम सिर दर्द कहाँ खत्म करें, क्या होगा हमारा। लेकिन नहीं मिल रही, फिर हमारी भी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी भी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। पैनाडोल के हवाले से गो की छोटी सी गोली है। आगाह कर रहे थे। लकड़ी की कीमतों को भी आग लग गई। फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई। मजीद जानते हैं सोहेब गोरमानी से। जी सोहेब बताइए। अजय भाई, लकड़ी की कीमतों को आग लग गई। लकड़ी की कीमतें आसमान छूने लगी। जो लकड़ी 900 रुपए फी मन फरोख्त हो रही थी वो आज 1275 रुपए और 1300 रुपए तक पहुंच चुकी है। और जो जलाने वाली लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो 500 रुपए में फरोख्त होती रही है, लेकिन अब वो भी 900 रुपए में फरोख्त हो रही है। यहाँ पे आड़ती हमारे साथ मौजूद हैं लक्कड़ मंडी के, उनसे बात करेंगे। शेख हसन साहब बताइएगा क्या रेट्स बढ़े हैं, कितना रेट बढ़ा है पिछले 2 महीनों के दौरान? जो 500 रुपए लकड़ी थी बालन था वो अब 800-900 रुपए में मिल रहा है। तो बड़ी जबरदस्त महंगाई हो गई है। बस ये देखो अब जो बने ज्यादा महंगाई हो गई है। लकड़ी जलाने वाली जो वो भी 1200 रुपए तक जा पहुंची है और फर्नीचर का और दूसरा जो सामान है वो 2000 रुपए 3000 रुपए मुख्तलिफ रेट्स हैं। आप खरीदने आए हैं लकड़ी यहाँ पे? जी मैं खरीदने आया हूँ। बताइएगा क्या लग रहा है रेट्स में, पिछले रेट्स और इन रेट्स का अगर मुवाजना करें तो? अब रेट में तो बहुत फर्क आ गया। पिछली दफा मैं असद भाई से लकड़ी लेके गया था 900 के साथ, अभी यही लकड़ी 1275 में दी है। ये हम लकड़ी ले तो जाते हैं लेकिन हमारे पैसे भी पूरे नहीं होते, उधर जाके हमें नुकसान भरना पड़ता है। ये लकड़ी कैमरामैन दिखाएंगे अब्दुर्रहमान। ये वाली लकड़ी 900 रुपए में फरोख्त होती रही है कुछ अर्सा पहले, लेकिन आज जो है 1275 रुपए पर फरोख्त हो रही है फी मन। ये लकड़ी की कीमतों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं अवाम और जो फर्नीचर वगैरह गुरबानी में आगाह कर रहे थे। सीमेंट की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम। बनाना हुआ और भी मुश्किल तामीराती सामान जो है उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा होगा। और अगर हम बात करें सीमेंट और सरिये की तो सीमेंट की जो कीमत है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सरिये की कीमत में भी जो इजाफा हो गया तो जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो मुतासर हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें दुकानदारों की तो दुकानदार हजरात भी जो है वो कीमतें बढ़ने से परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, दुकानदार से बात करते हैं। आप बताइएगा जी आज जो है वो इसे जो सीमेंट की बोरी है इसका क्या रेट है और कैसा कारोबार चल रहा है? भजन आज आपकी बात बिल्कुल बजाय है। सीमेंट का जो आज का रेट है 9 से लेकर 950 तक सेल हो रहा है और रेट बहुत गैर मुस्तकम है। ये मसनूई किल्लत पैदा की गई है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना रेट कभी महंगा नहीं हुआ और रेटें हैं वो 7000 रुपये सेल हो रही हैं और जो गवर्नमेंट रेट था 5500 रुपये, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और सरिया 200 रुपये सर महंगा हुआ है और 200 से भी बुलंद जाने का इरादा रखते हैं जो होलसेलर हैं। इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। घर वाकई में बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो गरीब आवाम तो बेबस हो जाएगी। और ये बताइए रोजाना आपको आपकी सेल में भी फर्क पड़ा है? लोग कारोबार भी सर डिस्टर्ब है, सेल में भी फर्क है और गरीब आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है और इस पर कंट्रोल जी बिल्कुल गरीब आवाम पर जहां सबसे ज्यादा बहुत बड़ा बोझ है। कासिम अली शेख शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोट अदू में भी सीमेंट की बोरी 950 रुपए पर पहुंच गई। मजीद जानते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर।
तो महंगाई की वजह से आम शहरी के लिए घर बनाना अब मजीद मुश्किल हो गया, क्योंकि सीमेंट की जो बोरी है वो मजीद महंगी कर दी गई है। पहले 750 रुपया सीमेंट की बोरी का रेट था और इस वक्त 950 रुपये की सीमेंट की बोरी जो है वो फरोख्त हो रही है। सीमेंट की बोरी महंगी होने की वजह से जो लोग घर बनवा रहे हैं या गरीब जो घर बनाने का सोच रहे थे उनके लिए कितनी मुश्किलात है। मेरे साथ यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं। आपने घर शुरू किया हुआ है और 950 रुपये की बोरी होगी, 750 रुपये की खरीद कर रहे थे, तो कितनी मुश्किलात हैं? सीमेंट महंगा होने की वजह से कोई मुश्किलात आ रही हैं आपको? बहुत मुश्किलात हैं सर जी। अब देखें, पहले बोरी थी तकरीबन 750, अब 950 पे चली गई है। मजदूरों की मजदूरी निकालना बहुत औखा हो गया है। अब सोचते हैं कि यहीं रोक दें मकान। तो महंगाई की वजह से क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? बहुत मुश्किलात हैं सर। अब ये ईंट में बहुत अब रोकने का दिल कर रहा है अपना। अच्छा, तुम मैं कुछ है सीमेंट मांगा था, इन नाल बिया सिला ही मांगे होसन, बिया मटेरियल ही मांगा होसी, तुम मजदूरी तुम्हारी मजदूरी इजाफा है, हुन सीमेंट मांगा थी, वरना लोग घर बनवे सन क्या देवे? सर सारी मजदूरी दे किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं थी। सारी मजदूरी तो उठाई है हत्थों, बल्कि लोग इन वजह काम बंद होने की वजह को हत्थों मजीद सही मेरे को मजदूरी घटती गई है, क्योंकि ई वजह वास्ते मजदूरी घटती पई है कि मजदूरी मिलती नहीं, काम बंद थी गए। बंद होने की वजह को कोई आदम में 800 नाल कमाना, कोई आदम 900 नाल कमाना, जितना 1200 मजदूरी गिन दिया से 1000 नाल 800 900 नाल भी कमा दे जी। अच्छा, सीमेंट पहले कितने थे, हुन कितना? पहले सर सीमेंट आई 750 रुपए का, हुन 950 रुपए का, 1000 का भी मिलता पी, 1000 का भी चेंदे पे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सीमेंट की सूरत है, हालांकि ब्लैक पर 1000 रुपए का भी फरोख्त हो रहा है। वैसे जो सरकारी करने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में कारकर्दगी जांचने का अमल शुरू कर दिया गया। सीईओ मोहम्मद फारूक डोगर ने वर्कर्स और इंतजामिया को रोड मैप दे दिया। जिस ऑफिसर या वर्कर की कारकर्दगी मतलूबा मयार के मुताबिक नहीं होगी, कार्रवाई होगी। रोड मैप पर अमल ना करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कंपनी स्टाफ की कारकर्दगी की हफ्तावार वर्कशीट तैयार की जाए। शिकायत के अजाले से कंप्लेंट सेंटर और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का पता चलेगा। सनाओं में लाखों रुपए की लागत से बनने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न हो सका। अंदरून बाजार गवर्नमेंट स्कूल के साथ 2 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। मजीद जानते हैं ताहिर चौधरी से। जी ताहिर। मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था। 2 साल पहले स्कूल के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, लेकिन अभी तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ना तो चालू किया गया है, ना ही इसकी टूटियां लगाई गई हैं, और शहरी जो हैं साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है और ये सूरत हाल है। 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। लाखों रुपए लगाकर इस फिल्ट्रेशन प्लांट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। शहरी जो है साफ पानी के हसूल के लिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जो इस वक्त सिनामा शहर में काम कर रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी है, उनसे भी बात करते हैं। 2 साल हो गए फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चलाया गया, क्या कहेंगे? क्या आखने गोदा बस रोमन आंदे एक प्लांट है हाई स्कूल दे नाल, उतो कहीं वेले पानी मिल वेंदे ना ते भला इहो बेकार पानी पीने बीमार थींदे पे हैं। ये 2 साल थी गए इत्थां कुत्ते भौंकदे पे इत्थां हेक अच्छा कहना हूं तो खुश थी गया से भी गोदे बन वेंदे पे। ये नहीं पता हुण कढण बन सी क्यामत को पहले अल्लाह करे बन वने। अजय बिल्कुल साफ पानी ना मिलने की वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और शहरियों का यही मुतालबा है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को फिलफौर जो है। ताहिर चौधरी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में छुट्टी के दिन नौजवानों ने रुख कर लिया खेल के मैदानों का। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली बताइए। मैं मौजूद हूँ मुल्तान के रेलवे ग्राउंड में और यहाँ के मनाजिर ये हैं कि अगर सुबह से ही मुल्तान शहर के जो नौजवान हैं यहाँ पर खेलों में मसरूफ़ हैं। क्रिकेट खेली जा रही है और नौजवानों की जानब से कहा यह जा रहा है कि हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है। स्कूल भी बंद होते हैं, कॉलेजेस भी बंद होते हैं और साथ साथ जो दफ्तरों में काम करने वाले हजरात हैं उनकी भी तवज्जो का मरकज़ जो है छुट्टी के दिन जो ग्राउंड ही होते हैं, ताकि सुबह सुबह खेल भी खेलें और जो सेहतमंद जिंदगी वो भी गुजारें। तो कुछ नौजवान शहरी मौजूद उनसे बात करेंगे पहले कि वो क्या कहना चाहेंगे। आज इतवार का दिन है, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हर संडे को हम खेलने के लिए आते हैं और सेहत के लिए ज़रूरी भी है कि क्रिकेट हो कोई भी गेम हो खेलना चाहिए उसको। तो डेली हम अपने मोहल्ले के लड़के कॉलोनी के लड़के इकट्ठे होकर यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और एक टीम बना के दूसरी टीम के साथ खेलते हैं। सुबह फजर की नमाज़ के बाद सारे आ जाते हैं और यहाँ पे 12-1 बजे तक मैच चलता रहता है। और इस ग्राउंड के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए इस ग्राउंड के अंदर थोड़े से गरासी के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें कि यहाँ पे कोई पिच बनाई जाए जिसके लिए क्रिकेट खेलने के लिए आसानी हो। काफ़ी लड़के जो है वो आपस में टकरा रहे होते हैं क्योंकि पिच होती नहीं है कोई, तो उसके लिए वो पानी को इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है जी। पानी का इंतज़ाम किया जाए, सहूलियात भी बेहतर हैं। जो कुछ नौजवान मुझे उनसे पूछो, उनसे जानते हैं क्या कहोगे। आज छुट्टी है, एंजॉय कर रहे हो? आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है और हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और संडे का दिन है, हम यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। सुबह आए थे, नमाज पढ़ कर और तकरीबन 12-1 बजे तक घर वापसी जाएंगे।
और सबसे इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर पानी का इंतजाम कीजिए। जी, ग्राउंड जो हैं वो आबाद है, लेकिन खिलाड़ियों की जानब से ये कहा यह जा रहा है कि सहूलियात का फुकदान है, तो इंतजामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम ग्राउंड्स में जो बुनियादी सहूलियात है वो फराहम की जाए। तो सबसे अहम बात यह है कि इतवार के रोज़ को गनीमत जानते हुए मुल्तान शहर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। अली रियाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। संडे को फन डे बनाने के लिए बच्चों ने पार्क्स का रुख कर लिया। किसी ने झूले लिए तो कोई मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ रहा। तफसीलात अलिशबा से जानते हैं। जी अलिशबा, बताइए। बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए नन्हे नन्हे बच्चों ने कर लिया है किला कोना कासिम बाग का रुख। यहाँ पे कोई झूले झूल रहा है, कोई मुख्तलिफ खेल खेल के खूब एंजॉय कर रहा है। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किसके साथ आई हो, क्या कहना चाहोगी? आज मैं मम्मा के साथ आई हूँ। आज संडे है, हमें छुट्टी है, बहुत मजा कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हो? यस। आपसे पूछते हैं भाई, आप क्या कहोगे? आज संडे है, गर्मी जरूर है मगर बच्चे जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहोगे, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो आज का दिन? मैं बस खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बस खुश हूँ अपनी जगह। हाँ, क्या क्या किया है, कैसे हैप्पी हो भाई, बताओ मुझे भी। हैप्पी हूँ, पार्टी की है, दोस्तों के साथ आए हैं, मम्मा के साथ आए, मम्मा पापा वहाँ बैठे हुए हैं, झूले झूल रहे हो? झूले झूल रहे हैं। जी, इसने तो भाई पार्टी भी की है, गर्मी जरूर हो रही है मगर बच्चे जो है आज का दिन, खास तौर पे संडे का दिन ऐसे नहीं जाने देते। इसने झूले भी झूले, अपने दोस्तों के साथ आया, इसके पेरेंट्स भी उधर बैठे हुए हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पिकनिक भी मनाई जा रही है। और गर्मी है मगर बच्चे जो है एंजॉय करना बिल्कुल नहीं भूल रहे। संडे को फंडे बना रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी, रहीम यार खान में संडे बन गया फन डे। छुट्टी के रोज नन्हे बच्चों और नौजवानों ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया। आमिर भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल, रहीम यार खान में छुट्टी के रोज खेल के मैदान की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। क्रिकेट खेला जा रहा है, बच्चे और नौजवानों ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया है। छक्के चौकों की बरसात हो रही है, खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती हो रही है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं छुट्टी के रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का कितना मजा आता है। छुट्टी के रोज दोस्तों के साथ खेलने का बहुत मजा आता है। ये एक ही दिन होता है हमारे पास जिसमें हम दोस्तों से मिलते भी हैं, खेलते भी हैं और काफी सारे मैच हम जीते भी हैं, हारे भी हैं। ये हमारे कैप्टन है, इनसे आप बाकी पूछ। क्या कहना चाहेंगे, कितने मैच? 5-6 मैच खेलेंगे, जिसमें से अभी हम 2 मैच हार चुके हैं, तीसरा मैच जारी है। इंशाल्लाह ये हम जरूर मैच जीतेंगे, बाकी हार जीत होती रहती है। बिल्कुल किया जा रहा है, मौज मस्ती की जा रही है और खिलाड़ियों को ये कहना है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में छुट्टी के दिन शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने सिरी पाए तो किसी ने नहारी खाई। छुट्टी का दिन हो, शहर औलिया के बासी घरों से बाहर नाश्ते के लिए ना निकलें, ये कैसे मुमकिन है? मुल्तान के शहरियों ने छुट्टी के दिन नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। कैंट बाजार में नाश्ते के लिए शहरियों का तांता बंधा रहा। हमने ये पावे खाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इधर अक्सर नाश्ता करने के लिए सुबह का टाइम होता है, अच्छा नाश्ता मिल जाता है। शहरियों का कहना था हफ्ते में एक छुट्टी होती है, इसलिए बाहर नाश्ता कर रहे हैं। अहले खाना की भी फरमाइश होती है कि छुट्टी के दिन बाहर से नाश्ता किया जाए। हमारी 40-45 साल पुरानी दुकान है और अल्लाह का शुक्र है, लोग फैमिली के साथ, गैदरिंग के साथ, दोस्तों के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों के रश्ते दुकानदारों की भी खूब चांदी हो गई। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।